now the presentation is from Mr. Anshul Gupta and Shrenik on manufacturing and food processing. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. मैं अंशुल गुप्ता डेलॉइट से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ फॉर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रोजेक्ट। जैसा कि पहले डिप्यूटी डायरेक्टर मैडम ने सेकेंडरी सेक्टर को इन डेप्थ एक्सप्लेन किया था, मैं फर्दर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश हैज set this ambitious target of becoming $1 trillion economy by financial year 28. Secondary sector led by manufacturing is one of the key drivers for achieving this transformational growth. Uttar Pradesh is currently contributing nearly 7% of India's manufacturing GSVA, making it to the rank of 5th position amongst other states. And in the state level, manufacturing sector contributes around 12% of the GSVA, which is projected to increase to 15% by financial year 28 with an average compounded annual growth rate of 37%. How to achieve this? So we have to work on two dimensions. First is the regional growth. At present, the regional distribution of manufacturing GSVA in the state is concentrated towards Paschim-Anchal. If you see, 76% of manufacturing GSVA is towards the western region, and hardly 1% of the manufacturing GSVA is towards the Bundelkhand region. This industrial skewness is in contrast with the demographic distribution in the state. We can see that 40% of the people reside in Purvanchal, 37% in Paschim-Anchal, 18% in Madhyanchal, and hardly 5% in Bundelkhand. Thus, to ensure that Uttar Pradesh is able to witness this high and fast-paced growth, it is essential to capitalize on potential of other three regions and ensure the balanced growth. The next dimension is to work on the sector-specific aspects. It has been always a traditional debate that an industrial development is a path-dependent process, or a leapfrogging can be done at the initial phase of it. But in the modern industrial development paradigm, UP's industrial choices should be based on the combination of both path-dependent and leapfrogging. Hence, to deal with it, we have identified 13 focus sectors, which were further shortened to 8 focus sectors with a lens of the sectors which have high export competitiveness, sectors which are prioritizing high output share in Uttar Pradesh, and sectors which have potential for export diversification. If you see on the right hand side, we have 8 sectors which have been identified as the sunrise sectors, and further 5 sectors which have been identified majorly for the MSME part of manufacturing division. Now, how to achieve this? To achieve this, we have identified the 4 strategic themes. First, UP for world, which is manufacturing products with more exportability. Second, UP for UP and India, that is manufacturing products to fulfill more domestic demand. Third, under the ambit of Atmanirbhar UP, we expect to reduce the external dependencies of domestic industry players on their imports, and hence we have to find out the import substitutions. And fourth, but very important, enhancing the factors of productivity, availability and quality. As we all know, land, capital and technology are being considered as the factors of productivity. But this can be extended to quality and availability of these factors. Next, these are the major bold plays on which the industrial sector and the manufacturing sector is working on. First is the land bank creation. To achieve all this manufacturing GSVA targeted, which is for financial year 28, we need huge land bank. It is estimated approximately 2 lakh acres of land bank has to be created to achieve this desired growth. Hence, to create this land bank, we are working on 2 aspects. First is land acquisition. As we all know, government has recently released 8,000 crores for land acquisition in Bundelkhand area, and also is in formation of Bundelkhand Industrial Development Authority. For land pooling, we are in process of creating a new land pooling policy, which will help us to buy land which is very costly in the western region. Next is industrial sector and infrastructure development.
To achieve this balanced regional growth, which we have shown in previous slides, which has to be across all the 4 regions of Uttar Pradesh, we are proposing 4 special investment regions, each across a region, which will help us to decentralize the regulatory procedures and help us to fasten the approvals. Third is enhancing the competitiveness of exports. As we all know, exports will lead to the growth story of this manufacturing sector. Third is branding promotion. Fourth is branding promotion and outreach. As we all know, state has witnessed a huge success in this Global Investor Summit, wherein 35 lakh crores worth of MOU intents were received, of which nearly 10 lakh crores was from manufacturing sector. So we are doing the Investor Connect sessions at the door of investors for grounding of these investments. Next, as we know, Uttar Pradesh is a footprint of highest MSMEs in India. Hence, to support them, we are enabling MSME development ecosystem. We are working on providing targetable access to finance, markets and technology. We are also working on developing e-commerce platforms for ODOP sellers within partnership of other e-commerce giants. Last, we have also worked on various policies building. We have nearly 26 new policies formulated. A lot of the structural changes of this competitive incentive framework and support infrastructure have been done through these revised policies. That's all. Thank you very much. If you have any questions, I can address them, or else we can go for the next session. Sir. ये export import है. Sir. So have you been able to identify the exportable products and Yes. for import substitution? Yes, sir. Yes, sir. We have extensively worked on this exports and import scenario. Within this UP International Trade Show, we have this more than 2,000 stakeholder consultations as well, wherein we have suggested them the targetable markets and also suggested the import substitutions. Like currently, if you see the mobile cluster, the chips and the boards, electronic boards are being procured from outside, from assembly of these mobile phones in India. So we have suggested few sectors like aerospace and defense, ESDM and everything, which will be the crucial sunrise sectors for us, and that will be the first most priority for us to give us the land or like for the investments in Uttar Pradesh. This you have recommended to the department? Yes, sir. It has been already recommended to Department for Industries and for MSMEs as well, both. And we are closely working with them for enhancing that growth. In imports, you consider imports from other states or imports from outside India? So we have considered imports from both the scenarios. Like we have also worked on the products which are being exported by other states but not Uttar Pradesh. We have worked on the products that are being imported by other countries which are of high value items that can be generated from Uttar Pradesh, which are not currently being made, and how that ecosystem can be created. Because if you see, Uttar Pradesh has most potential for raw materials. The finished products are not being developed by Uttar Pradesh. However, the raw materials, the intermediates of the finished products are being created from Uttar Pradesh, so that the final GSVA is not getting accumulated to Uttar Pradesh. Hence, we have proposed them that the final product should be manufactured in Uttar Pradesh, so that that GSVA pass on to the state, and hence it helps in boosting the economy as well. Thank you, sir. Have you been able to identify how much contribution will be coming from each of these strategies? Of course, sir. We have built up that scenario as well. Those data are not with me presently, but if we see from special investment regions, we have identified nearly 20,000 acres of land in each special investment region, which are being planned in every region. Like for Aligarh, Jhansi, in center it is at Unnao, and in eastern it is at Prayagraj and Chitrakoot. Those will be the focus magnet points of all the major investors. We have also calculated the investment required for boosting up, like scaling up that economy to the required aspects. We have worked on land bank creation. We have identified 24 districts which will be the major focus points of growth. For branding and promotion outreach, we are definitely doing it with the conversion rate of our MOUs to the grounding part of it.
And for enhancing the exports, as I've already said you that we are closely working with the department for boosting that exports as You well. are planning to achieve 37% CAGR. 37% CAGR, yeah. So that manufacturing particularly reaches from 12% contribution to 15%. 3% growth, but at a compounded annual growth rate of 37% year on year. That is for the 5 years. Yes, sir. This year it is at current price. This is at current price. 12% currently manufacturing is contributing to GSP. I think last year's growth was 21%. Growth rate. Correct. So we need at least 37% to reach to that 37. Yeah. 1.5 times. Exactly, sir. That is why. Yeah. Lot of thank you. Thank you, sir. Thank you so much. One question. Yes, sir. You have mentioned about MSME sector. Is there any roadmap to integrate one district, one product scheme also in that? Of course, one district, one product is already one of the flagship programs of MSME sector. Currently, we had this ODOP Mart which was not moving as desired. Hence, we are now closely working with MSME department to integrate that integrate that ODOP Mart with Amazon. We are creating microsites on Amazon. We are also working closely to propose department for enhancing and scaling up of that ODOP Mart itself, so that more sellers can be onboarded on that ODOP Mart, and every seller has that platform to increase his revenues. We have a GEM portal in the state government. So is there any Yeah. plan to integrate that into that as well? GEM portal is already integrated, sir. But GEM portal has its own restrictions for like GST registrations and everything. ODOP Mart, we have a flexibility of getting aggregators, like currently UPSDMC, which is Handicrafts and Handloom Department. It is acting as an aggregator wherein all those sellers who don't have GST registration, small sellers, small artisans, can be given a platform digitally so that their products can be sold outside India as well as in domestic market. But that facility is not with GEM currently. If we find some aggregators to the GEM as well, we can do that, sir. We can talk from the finance department. Mr. Monis Ali Siddiqui is like coordinating with that. Okay. We can just hold something with it. We have written a book also on that. Acha. We can work about. Of course, we'll love to do that, sir. Thank you so much for that. That's all. Thank you so much, sir. Thank you. We have with us Mr. Sanjay Kumar Srivastava he is Deputy Director DES. He will be referring to gas, water supply, construction, how the data is collected and processed, and estimation of this sector into GDP. गुड इवनिंग। मेरे ख्याल से ये लास्ट सेशन है। सुबह से आप लोग काफ़ी लोगों के वक्ताओं को सुने, अब मुझे भी सुन लीजिए। अभी तक आप लोगों ने जो वक्ताओं ने जो आप लोगों को ज्ञान दिया, उसमें बेसिक्स हम लोग का ये था कि डेटा हम लोग फील्ड से कलेक्ट करते थे और उस पर कुछ मैथमेटिकल फार्मूला लगा के वैल्यू क्रिएट करते थे। कंस्ट्रक्शन एंड ऑनवर्ड सेक्टर में जो हम लोग का डिफरेंट अप्रोच है, ऐसा अप्रोच है नहीं। यहाँ पे हम डेटा कैप्चर प्रोडक्ट की जगह इंस्टीट्यूशन वाइज करते हैं कि किस इंस्टीट्यूशन ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या काम किया, उसको हम लोग कैप्चर करते हैं। तो यहाँ से थोड़ा अप्रोच डिफरेंट हो जाता है हमारे जीवीए कैलकुलेट करने का। एक तरीके से रिकैप करें, जीडीपी सब सुबह से चल रहा है, सब लोग जीडीपी क्या है तो जान ही गए होंगे। एक तरीके से रिकैप यही है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो भी गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसके वैल्यू को ही ऐड करके हम लोग जीडीपी कहते हैं। मोटा मोटा इसका डेफिनेशन यही है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर एरिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है उसको अगर हम उसकी वैल्यू लेते हैं, नॉट प्रोडक्शन एज सच बट उसकी वैल्यू लेते हैं तो वही, और उसको जोड़ते हैं तो वही जीडीपी होता है। वैल्यू लेने के लिए बट नेचुरल है, आपको प्रोडक्शन भी चाहिए, आपको उसकी प्राइस भी चाहिए, जहां पर हम प्रोडक्शन अप्रोच कराते हैं। जीडीपी अभी आप देखेंगे यहाँ पर हम बात जीडीपी करते हैं, लेकिन आगे जब बात
जब मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो वहां हम लोग जीवीए की बात करते हैं। यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं, वहां कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंस। जब भी हम सेक्टर वाइज जाते हैं तो हम जीवीए कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली क्या है कि जीवीए में जब हम टैक्सेस जोड़ देते हैं और जो सब्सिडीज मिली हुई प्रोडक्ट्स को घटा देते हैं, जो नेट ऑफ टैक्सेस होता है और जीवीए का जोड़ ही जीडीपी कहलाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो टैक्सेस और सब्सिडीज है ये इंडिविजुअल सेक्टर वाइज हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसे हम कहें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना टैक्स लगा या कितनी सब्सिडीज दी, या किसी पर्टिकुलर गेहूं पे कितना टैक्स लगा, कितनी सब्सिडीज दी, ये हमारे पास एक अलग से डेटा नहीं आता। हमारे पास क्या डेटा आता है कि पूरा जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, पूरा एक्साइज में कलेक्शन कितना हुआ, पूरा स्टैम्प में हमें कलेक्शन क्या हुआ, पूरा हमने सब्सिडीज क्या। तो इस कारण से हम पहले जीवीए, स्टेट का जीवीए कैलकुलेट करते हैं, उसमें नेट ऑफ टैक्सेस सब्सिडीज जो के हम जीडीपी पे अराइव होते हैं। तो ये कंफ्यूजन मत रखिए। बेसिकली जीडीपी जब हम जीवीए करते थे, इट इज ए सॉर्ट ऑफ जीडीपी ऑफ दैट सेक्टर माइनस टैक्सेशन ऑफ दैट। जीडीपी बहुत जरूरी है क्योंकि हम इकोनॉमी बहुत बड़ी है। इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए या इकोनॉमी के ग्रोथ को नापने के लिए हमें कुछ चाहिए, कोई नंबर चाहिए। तो वो नंबर एक जो है जीडीपी जो है, ये एक नंबर है जो हमको एक आभास देता है कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं या दूसरे स्टेट के सापेक्ष हम कैसे काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई जीडीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी एज ए। अब इकोनॉमी हम कहते हैं इकोनॉमी की जीडीपी, इकोनॉमी बहुत बड़ी हुई है, बहुत एक्टिविटीज इसमें होती है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करें? क्योंकि हर तरीके का डेटा हर सेक्टर में आपको नहीं मिलता है। तो हमारे इकोनॉमिस्ट या पहले के लोगों ने एक पूरे इकोनॉमी को 3 मेन सेक्टर में बांटा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन से सब सेक्टर्स आते हैं वो स्लाइड में आपको दिख रहा। सेकेंडरी में जो आते हैं वो सेकंड स्लाइड में है, और टर्शियरी में जो सेक्टर्स आते हैं। ये एक मोटा मोटा इकोनॉमी का विभाजन है, क्योंकि इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के लिए जब तक हम नीचे के स्तर से ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आज आपको हमारे पूर्व के वक्ता ने अभी सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बताया। सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन। ये 3 सेक्टर इकोनॉमी के सब सेक्टर मिलकर ये मैन्युफैक्चरिंग, ये सेकेंडरी सेक्टर बनता है। मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में आपको अभी हमारे कोलीग ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग का डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, कहाँ से आता है। अब हम नेक्स्ट आएंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी, गैस के संबंध में कैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि यहां से अप्रोच हमारा यह डिफरेंट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हम कोशिश करते हैं कि ये नहीं हम कोशिश करते कि कितने मकान बने, कितने ब्रिज बने, कितने सड़क बने, ये नहीं बनता। यहां पे हमारा अप्रोच रहता है कि किस इंस्टीट्यूशन ने कंस्ट्रक्शन में कितना वैल्यू ऐड किया। तो इंस्टीट्यूशंस को हम कैसे बांट देते हैं? जितने भी इकोनॉमी में इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, एक डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस जैसे रेलवे हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, दे आर डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट इनको फंड देता है, इनसे काम कराता है, दे आर डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस। तो इनके द्वारा जो वैल्यू एडेड होता है उसको हम डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस में डालते हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट होता है नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस। जैसे जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन के कॉर्पोरेशन है, ब्रिज कॉर्पोरेशन है, नाल के निर्माण निगम है, ये सब जो है आपको हम लोग नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस कहते हैं। तीसरा है जनरल गवर्नमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, दे आर जनरल गवर्नमेंट। फिर प्राइवेट कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट है, प्राइवेट सेक्टर्स के जो कॉर्पोरेट है जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वो इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
अब उसके बाद कुछ ऐसे इंटरप्राइजेस हैं जिनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम आपका हाउस होल्ड के इंटरप्राइजेस जो काम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं उसको हम लोग प्राइवेट इनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस करते हैं। तो पूरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को इन 5 इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में बांट के हम लोग इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्लाइड में नीचे दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 5 प्रकार के इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स को हम डेटा हमको लेना पड़ता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए जनरल गवर्नमेंट नहीं रहता है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती है, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इन सभी सेक्टर्स में आपको काम डेटा हमको लेना पड़ता है। अभी क्या मेथोडोलॉजी है? बेसिकली मेथोडोलॉजी जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कलेक्ट करने की या कैलकुलेट करने की, यहाँ पे देखिए हम क्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जीवीए लेते हैं। यहाँ भी हम टैक्सेशन की बात नहीं करते, जीवीए कैसे किसी सेक्टर का लेते हैं। पब्लिक सेक्टर का जीवीए कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमारे बजट डॉक्यूमेंट्स होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें जो हमको वैल्यू या फंडिंग हम ये बजट रखते हैं दैट इज कॉल्ड, उसका पूरा पब्लिक सेक्टर का वो हम पूरा ले लेते हैं, दैट इज द जीवीए ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के सेक्टर से जितने भी काम। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का हम कैसे लेते हैं? उन्होंने क्या कंस्ट्रक्शन किया? अभी जैसे हमसे कहा जाए कि लखनऊ में प्राइवेट सेक्टर ने कितने का कंस्ट्रक्शन किया, तो हमारे पास कोई फिगर होगी। ठीक, ये फिगर हम कहां से लेते हैं? जो भी कॉर्पोरेट है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, कंपनीज एक्ट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपका दायित्व है कि साल में एक बार आप रिटर्न वहां भर के देंगे कि आपने क्या कंस्ट्रक्शन कराया, कितने रुपए का कंस्ट्रक्शन कराया, क्या उसकी इनपुट कॉस्ट थी, क्या उसकी आउटपुट कॉस्ट थी, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन है, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कॉर्पोरेशन टू फाइल दिस रिटर्न। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ने एक डेटाबेस बनाया जिसे कहते हैं MCA 21 डेटाबेस। इसमें उनके पास इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन वाइज फिगर रहती है कि उन्होंने क्या कितने वैल्यू का कंस्ट्रक्शन किया और कितनी वैल्यू की उन्होंने परचेज किया। तो दिस टू प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का डेटा हमको वहां से मिलता है। सबसे जो डिफिकल्ट है वो है अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर का, जो हाउस होल्ड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो प्राइवेट आदमी जो कॉर्पोरेट नहीं है वो कंस्ट्रक्शन करना, उस डेटा को कहां से लिया जाए। यहां पे वर्तमान में हमारे पास कोई ऐसा डेटा सोर्स नहीं है जो हमको रियल टाइम पिक्चर दे। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो एक साल पीछे का डेटा मिल जाता है, लेकिन अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जो हमको करंट फिगर दे। इसी गैप को भरने के लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन पीरियोडिक सर्वे करता है। वो सर्वे हम लोग गांव से में जाके शहर में जाके रैंडम बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं, और जिसमें जो भी एक्टिविटीज इकोनॉमी में हो रही हैं जिनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कितने वैल्यू की हो रही है, ये हम कोड वाइज NIC वाइज दिखाते हैं। इनफैक्ट क्या है, पूरी इंडस्ट्री को कई इंडस्ट्रियल कोड्स में बांटे गए हैं, तो हर कोड वाइज हम निकाल पाते हैं कि कितना जीवीए वो NIC कोड अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में काम कर रहा है। ये डेटा, ये सर्वे 5 साल में एक बार होता है। लास्ट सर्वे जो था 10/11, 11/12 में हुआ था, उसके बाद ये सर्वे हुआ नहीं है। अब आप जानते हैं 10/11, 11/12 से 22-23 चल रहा है, कितना चेंजेस हो गया होगा डेटा में, कितना जीवीए में चेंज हो गया होगा। जो एक्टिविटीज उस समय नहीं रही होंगी वो एक्टिविटीज अब आ गई हैं, लेकिन वो डेटा हम नहीं कैप्चर कर पा रहे। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डेटा। और ये कोशिश किया जाता है कि इसको रेगुलरली किया जाए। काफी फैक्टर्स रहते हैं, तो अभी तक 11/12 के बाद नया डेटा आया नहीं है।
इनफैक्ट 21-22 में नया सर्वे चालू हो गया है। ये सर्वे किया जा रहा है, लेकिन इसके रिटर्न्स आने में 2 साल लगेंगे। तो फिलहाल हमको इसी सर्वे से काम चलाना रहता है। ये सर्वे ऐसा है कि जिसमें हमको ये मालूम चलता है कि किसी पर्टिकुलर एनआईसी कोड, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में कितना वैल्यू एडेड हो रहा है और कितने वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि जो हम ग्रोथ निकालते हैं वो हम ये देखते हैं कि उस एनआईसी कोड में एक वर्कर कितना जीवीए ऐड कर रहा है, कितना जीवीए ऐड कर रहा है। ये अगर हमको मिल जाए तो हम वर्कर्स का कुछ एक्सट्रापोलेशन कुछ लगा के हम आज के करंट डेट में वर्कर्स की स्थिति अगर निकाल लेते हैं कि हमारे पास इतने वर्कर्स हैं, तो हम उसका जीवीए निकाल सकते हैं। तो जीवीए पर वर्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो उसी सर्वे से आता है और वो भी अनइनकॉर्पोरेटेड। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, ना कोई ऐसे मेथडोलॉजी है जिससे हमें करंट फिगर मिल जाए। दिस इज द डेटा चैलेंज जो हमारे पास अभी भी है। जो जीवीए कैलकुलेट करने का तरीका है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट के जो इंटरप्राइजेस हैं, कई अप्रोच जीवीए कैलकुलेट करने का होता है। लेकिन यहां पर जो हम लोग अप्रोच यूज करते हैं वो दिया हुआ है कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने सैलरी में कंपनसेशन तो एम्प्लॉयज को कितना दिया, प्लस रेंट कितना दिया, इंटरेस्ट कितना दिया, प्रॉफिट कितना दिया और प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये चारों चीज को मिला के हम जीवीए निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं। पहला जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है, ये बेसिकली सैलरी पार्ट है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बेसिकली एक तरीके से डिप्रिसिएशन है। तो ये वैल्यू जब हमको मिलती है तो हम जीवीए निकाल पाते हैं। अब ये वैल्यू कहां से मिलती है? दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीवीए इन डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस एंड नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस। ये वैल्यू कहां से मिलती है ये भी हम आगे बताते हैं। डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस एंड नॉन डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस में ये फॉर्मूला लगा के हम जीवीए निकालते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में चूंकि रेंट नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, तो वहां पे केवल हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और सीएफसी, इसी दोनों के फिगर से हम जीवीए निकाल लेते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती है, तो हमने सैलरी कितना दिया प्लस हमारे जो संसाधन उसमें डिप्रिसिएशन क्या हुआ, इसी को मिला के हम जीवीए कैलकुलेट करते हैं। प्राइवेट कॉर्पोरेट्स में भी वही पुराना तरीका है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड कंजम्पशन टू फिक्स्ड कैपिटल। ये पुराना तरीका जो हमारे डीज एंड डीज के लिए, वही हम प्राइवेट कॉर्पोरेट के लिए लेते हैं। और जो हमने बताया कि अनइनकॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस में देखिए इसमें 2 पार्ट रहते हैं, जीवीए पर इफेक्टिव एम्प्लॉय और नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्कर्स। जो हमारा इंटरप्राइज सर्वे होता है जो 2010-11 में हुआ, इससे हमें मिल जाता है कि हर इंटरप्राइज कोड में एक एम्प्लॉय कितना जीवीए ऐड कर रहा है। ये सर्वे 10-11 में सर्वे होता है। और एक दूसरा उसी साल होता है जिसे अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एनआईसी कोड में, इंडस्ट्री कोड में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर की बात कर रहे हैं, बाकी एनडीज में, डीज में, प्राइवेट कॉर्पोरेट में हमारे पास फिगर ऑलरेडी रहती है, वो हमको मिल जाती है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, जो कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वहां पे कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और कितने जीवीए वो प्रोड्यूस कर रहा है पर वर्कर, इसके लिए ये सर्वे ही हमारा एक तरीका है जिससे हम पता कर पाते हैं। क्योंकि सर्वे अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर बहुत बड़ा है, हर साल इसका सर्वे हो नहीं सकता, हर जगह हम जाके इसका डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इसका सोचा गया कि इसका रैंडम सर्वे ही हम लोग किया जाए सैंपल आधार पे, फिर उसको ब्लो अप कर दें यूपी लेवल पे। और ये सर्वे ये भी सोचा गया कि 5 साल में एक बार किया जाए, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया गया जब ये था
कि इन 5 सालों में बहुत चेंजेस नहीं होगा आपके जीबीए और नंबर ऑफ वर्कर्स में। बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस तो होंगे, बहुत स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं होगा। कोरोना आ गया, सब आ गया, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। अब हम लोग 11 इस साल 21-22 में कर रहे हैं, हो सकता है 2 साल में रिजल्ट आ जाए। तो ये 2 तरीके बेसिकली हैं जिससे हम जीबीए कैलकुलेट करते हैं। और सॉरी, ये जो हमने बताया ये बेसिकली पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, गैस और वाटर सप्लाई सब में यही हम बेसिक मेथोडोलॉजी यही यूज करते हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या क्या होता है? अल्टरेशन, रिपेयर, डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, हाईवे, स्ट्रीट, सब जितने काम जो होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होते हैं, ये हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर कवर करता है। और जो एंटिटीज इसको करती हैं उन्हीं को हम अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, उन्हीं का हम लोग जीबीए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मेथोडोलॉजी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखिए 3 पार्ट होते हैं, एक पब्लिक पार्ट, एक रेसिडुअल पार्ट, एक हाउस होल्ड पार्ट। पब्लिक पार्ट मैंने बताया कि जितने डीज एंड डीज हैं दे आर द पब्लिक पार्ट्स। रेसिडुअल में एक पार्ट होता है प्राइवेट कॉर्पोरेट पार्ट और दूसरा होता है अदर रेसिडुअल पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये बेसिकली एक तरीके से बैलेंसिंग एक्ट होता है। इनफैक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट सोर्सेज से जीबीए एस्टिमेशन इस तीनों तरीके का करती है। उसको ये मालूम है कि हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में टोटल जीबीए कितना बन रहा है, अलग अलग सोर्सेस से उनको मालूम रहता है। जब वो पब्लिक इंटरप्राइज का जीबीए निकालते हैं और जो उन्होंने अलग सोर्स से निकाला, तो उसमें जो डिफरेंस रहता है उसको ये बैलेंसिंग करने के लिए अदर रेसिडुअल पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वे कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कहते हैं। उसके बाद एक हाउस होल्ड सेक्टर से ये रहता है कि जो हाउस होल्ड ने कंस्ट्रक्शन किया वो हम लोग यहाँ कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 3 पार्ट है, पब्लिक, रेसिडुअल और हाउस होल्ड पार्ट। इन सब के कलेक्ट करने का तरीका है, मैं बहुत उसके इंट्रिकेसीज में नहीं जाऊंगा क्योंकि इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज, लेकिन बेसिक तरीका सबका कैलकुलेट करने का एक ही है कि पब्लिक सेक्टर में हम उनके सैलरीज, इंटरेस्ट, ये सब चीज देते हैं। अब पब्लिक सेक्टर में 2 तरीके के सेक्टर्स होते हैं, एक जो है स्टेट इंटरप्राइजेस होते हैं, दूसरे होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरप्राइजेस। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरप्राइजेस तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में रहते हैं, तो उसका जीबीए वो स्टेट्स को एलोकेट करते हैं कोई फॉर्मूला लगा के। जैसे मान लीजिए राजकीय निर्माण निगम स्टेट का है, तो इसने जो जीबीए किया वो तो हमारे यूपी स्टेट्स को पूरा का पूरा दे देते हैं। लेकिन मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस है या नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस है, ठीक है, मान लीजिए ब्रास कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। अब ब्रास कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो जीबीए है ये पूरे इंडिया के लिए है। इसको डिफरेंट स्टेट्स में कैसे बांटा जाए, कोई मेथड नहीं है, क्योंकि सबका रिटर्न जो है, ब्रास कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिटर्न जो है एक ही रिटर्न बनाता है, वो ऑल ऑफ इंडिया कैसे होकर वहां देता है। उससे ये नहीं पता कर सकते कि स्टेट का कितना जीबीए। तो इसके लिए वो कोशिश करते हैं, वो कोई फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें जैसे दिया हुआ है कि कोई ना कोई इंडिकेटर लगा के उस इंडिकेटर से उस जीबीए को डिफरेंट स्टेट्स में बांट देते हैं, जिससे ये हो कि किसी स्टेट्स को ये ना कहने को हो कि हमको अधिक दिया, दूसरे को कम दिया। वो जो इंडिकेटर्स वो यूज करते हैं वेरी ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स होते हैं, उस इंडिकेटर्स से जीबीए को वो बांटते हैं। ये चाहे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए। स्टेट गवर्नमेंट का आपने जितना कैलकुलेट किया अपना जीबीए, वो पूरा का पूरा आपको दे दिया जाता है कि कितना आपने जीबीए कैलकुलेट किया। जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है
estimates of center dues are allocated to the say using the state-wise outlay on the construction. अब कोई कहते हैं, मान लीजिए डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उन्होंने इंडिकेटेड है कि स्टेट वाइज आउटले कंस्ट्रक्शन में उस डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस ने कितना रखा है, उस रेशियो में आपको वो बांटते हैं। नॉन डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि स्टेट वाइज एम्प्लॉयमेंट कितना एम्प्लॉयज आपके हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। इसमें हमारा बहुत रोल नहीं रहता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का बहुत रोल नहीं रहता। इट इज ऑल कैलकुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो वहीं पे कैलकुलेट करते हैं और हमको एलोकेशन कर देते हैं कि आपके स्टेट जीएसडीपी में सेंट्रल गवर्नमेंट का एनडीएस का डीएस का ये शेयर है। जो स्टेट गवर्नमेंट के डीज है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, वो मतलब आप लोग उससे आए हुए हैं, वहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डेटा एक्यूरेट जाए, समय पे जाए। अगर एक्यूरेट नहीं जाता, समय पे नहीं जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो प्रीवियस डेटा रिपीट कर देते हैं। समय पर नहीं जाता तो वो प्रीवियस डेटा रिपीट कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जीएसडीपी, आपने बढ़िया काम किया, आपने सब चीज किया, लेकिन आपके जीएसडीपी में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती है। यूपी के साथ यही समस्या नहीं है, क्योंकि हम डेटा एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने में बहुत अलर्ट नहीं रहते, और डेटा इज गिवन द लास्ट प्रायोरिटी इन ऑल डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हम लोग की संख्या बहुत कम रहती है वहां पे। संचालन पे, इम्प्लीमेंटेशन पे अधिक महत्व रहता है, टारगेट अचीवमेंट पर अधिक महत्व रहता है, लेकिन ये डेटा का शेयरिंग कहां पे डेटा भेजने पे, समय पे भेजने पे हमें रिफ्लेक्ट होगा, ये हम लोग को ना जानकारी और ना हमने कभी जानकारी दिया। इसमें हमारी भी गलती है कि हमारे भी जान के लिया, सरकारी तरीके से हमने लेटर भेज दिया और फिर आपको रिमाइंडर देते रहे, भैया भेजो भेजो भेजो। इस ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य यह है कि देखिए जीएसडीपी कैलकुलेट, सीमेंट मंगाते हैं, क्या कहते हैं, स्टील मंगाते हैं, ठीक है, वो डेटा उन्हीं के पास रहता है, वो भी कंजम्पशन हो जाता है। आपके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वाइज आपके पास डेटा रहता है कि साहब इस प्रोजेक्ट में इतना स्टील हुआ, इस प्रोजेक्ट में इतना सीमेंट हुआ। लेकिन अगर आज किसी आप ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाए कि साल भर में आपने कितना सीमेंट खरीदा, कितना आपने स्टील लिया, और इसमें से कितना यूपी से आपने लिया, ये डेटा हमारे पास नहीं रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्यों रहता है डेटा? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे हमारी बाउंड्री क्लोज है, वहां से कोई चीज अगर बाहर नहीं जा सकती बिना आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए, या बाहर से अंदर नहीं आ सकती। लेकिन स्टेट जो है पोरस है, आपने कितना सीमेंट बाहर से मंगा लिया, इसका हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उसको गिन सके कि कितना आ सका है, या यहां से प्रोडक्शन होकर बाहर गया, नहीं कर सकते। तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि उसको मालूम है कि कितना सीमेंट प्रोडक्शन हुआ, कितना स्टील प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि उसको यही मालूम कितना यहां से एक्सपोर्ट हुआ, कितना यहां से इंपोर्ट हुआ, ठीक है। और उसको ये भी मालूम है सीमेंट कंपनी से या स्टील फैक्ट्री से कि उन लोगों ने किस स्टेट को कितना डिस्पैच किया। डिस्पैच मतलब अपने डीलर्स को दिया, डीलर से वहां तक किया। उस आधार पे ये हमको शेयर करते देते हैं कि इस टोटल जीवीए में आपका इतना जीवीए है। प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा जो यूज करते हैं ये भी 10 साल पुराना है। सीमेंट कॉर्पोरेशन ने गत 10 वर्षों से कितना स्टेट वाइड डिस्पैच की फिगर बनानी बंद कर दी। उनके पर्सनल डायरी या उनके बिजनेस का जो कंपटीशन, उसके कारण उन्होंने पब्लिश करना छोड़ दिया। तो ये भी पुराना डेटा लेके हम जीवीए मिल रहा है, जबकि आप देखिए इधर 10 सालों में या 5 सालों में
यूपी में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बहुत हमने पैसा खर्च लगाया है। इतने एक्सप्रेसवेज बने, इतने रोड्स बन रहे हैं, इतने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है। लेकिन चूंकि ये डिस्पैच का डेटा हमारा पुराना है तो यूपी को पूरा शेयर नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम $1 ट्रिलियन बनाएंगे, और किसी और से पूछिए तो कहेगा भाई आपका तो 28 बिलियन डॉलर आपकी इकॉनमी है, आप कैसे 1 ट्रिलियन बनाए। 50% ऑफ ये चीज आगे बढ़ जाएगी अगर हमारा डेटा सही है। वी आर प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग, वी आर वर्किंग ऑन इट, बट वी आर पुअर डेटा गैदरर। डेटा हमारे पास है नहीं, डेटा हम कलेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण हमको सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है उसी पे हमको विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कंफर्म करने के लिए डेटा नहीं है। हम उनसे कंफर्म तब कहेंगे जब हमारे पास वो डेटा उपलब्ध है। वो डेटा क्यों नहीं उपलब्ध है? क्योंकि हम डिपार्टमेंट्स, हम सब लोग डेटा के प्रति इतने ओरिएंट नहीं है कि इस डेटा का यूज कहां हो रहा है। तो हमारी सब मेहनत यूपी को, इतना मेहनत करने के बाद भी यूपी को हम बढ़िया से प्रोजेक्ट नहीं कर पाने। जब हार्ड फिगर्स की बात आती है, प्रचार आप कर लीजिए, दिखाई आपको सब देगा, लेकिन अल्टीमेटली इंटरनेशनल नेशनल लेवल जब जीएसडीपी की बात होगी तो मान चलेगा कि आप चौथी बिगेस्ट इकॉनमी यूपी की है, इंडिया के हैं। जबकि अगर हम लोग देखें, डेटा सही से कैप्चर करें तो वी कैन कम अप टू सेकंड, महाराष्ट्र के बाद या महाराष्ट्र के बराबर हो सकते हैं। और भी देखिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में आपको बताया होगा, रिलायंस की एक यूनिट यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है, सब जगह है, लेकिन उसका हेड ऑफिस महाराष्ट्र में है। यूपी से मैक्सिमम काम करने के बावजूद भी फिगर जा रही है महाराष्ट्र, और फिर यही पुराना एलोकेशन लगा के हमको एलोकेशन दिया जा रहा है। पोटेंशियली हम बहुत अधिक ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमको डेटा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे डीएस, ऐसे प्लानिंग डिपार्टमेंट, हम लोग सीएसओ से रेगुलर इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी आप लोग को भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी जाएं, आप लोग भी समय से डेटा दें। बेसिकली क्या है ना, जैसे आप जो रूटीन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे डेटा डाल देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सीएसओ जो है वही डेटा लेता है, हम यहां से बाद में कुछ भी भेज दे रहे हैं। जो आपके साइट पे डेटा पड़ा हुआ है वही वो फेच करता है। तो अगर हम इस डेटा को ठीक से देख के नहीं भेजेंगे तो बाद में आप कहते हैं उनका एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन से डेटा फेच हो जाएगा। अगर आपने समय पर डेटा नहीं भेजा, नहीं डाला उस पर, उस टाइमलाइन के बाद में आप कोशिश करते रहिए, वो डेटा लेंगे नहीं। पिछले 2 सालों से हम लोग यही परेशान था। एग्रीकल्चर ऐसे प्राइमरी सेक्टर में हमारी फिगर साइट पे कुछ और थी, हम यहां से कुछ और भेजते थे। 1 साल 1.5 साल हम लोग सीएसओ से माथा पच्ची करते रहे, बट भाई सीएसओ को तो 25 स्टेट देखना है, आपको कहीं स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। लास्ट ईयर भी मैनेज इट के साथ हम डेटा जो भेजे समय पे भेजे और सही डेटा भेजे, तो हम लोग काफी 20% जो ग्रोथ जीएसडीपी में दिखाया जा रहा है, मेजर इज प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि एटलीस्ट जो डेटा हम प्रोड्यूस करते हैं उसको तो सही पता है। बाकी हाउस होल्ड सेक्टर सबको मैंने बता दिया कहां से ये डेटा आप लोग लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऐसे आप लोग के जो हमारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी संस्थाएं हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो डीएस को एक टाइमलाइन है जिसमें आपको अपना बैलेंस शीट देना रहता है। जो आपके बैलेंस शीट होता है उसी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हम आपकी जीवीए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में दिया रहता है आपने कितना कंपनसेशन दिया हुआ है, कितना आपने। बैलेंस शीट ऑडिटेड नहीं हुई है,
जबकि गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट इंडिया, सबका जियो है, फिक्स है कि इस तारीख तक आपको अपने बैलेंस शीट बना के दे देने चाहिए, जमा कर देने चाहिए। नहीं होता, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? आखिर जो रूटीन अफेयर है, चलिए ठीक, इस महीने नहीं अगले महीने हो जाएगा, 2 साल बाद होगा, बोर्ड की मीटिंग में हमें प्रस्तुत करना होगा, तब तक हो जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम पे हमें 18 अक्टूबर तक बैलेंस शीट नहीं दिए, हमारे यहाँ भी 1 महीने में मुझे देना है करके, तो हम क्या करेंगे? जितना आया उतने को तो भेज देंगे, तो कवरेज कम हो जाएगा। तो बाकी हम क्या करते हैं कि आपकी पुरानी फिगर रिपीट करके भेज देते हैं। अब आपकी फिगर रिपीट होके गई तो जीएसडीपी हमें जितना बढ़ना था, चाहिए जितना बढ़ना था उतना मिलाएंगे। तो अल्टीमेटली सफर कौन हुआ? यूपी ने सफर किया, जीएसडीपी सफर हुआ। हम आप जो बैठे हुए हैं, हम लोग ब्लेम गेम करते रहेंगे, साहब उन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्या नहीं किया, लेकिन आजकल तो हम ही आप रहते यहाँ हैं, तो हम ही आप फेस करेंगे इसको। तो लगभग आप मुझे ये कहना है कि डेटा जो है वो समय पे डीएस को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टाइम निर्धारित है उसको अवश्य भेजिए, ये कोशिश कीजिए। बस आप लोग उस लेवल पे हैं, आप लोग को खुद भेजना है तो काइंडली डू इट। अगर उस लेवल पर नहीं है, आपके हायर अप उसको भेजना है, तो काइंडली ओरिएंटेड उन लोग को बताइए कि साहब ये डेटा भेजना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम काम करके भी सफर करेंगे। यही हाल, ये तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर का जो सेकेंड पार्ट है उसमें 4 पार्ट आते हैं: इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और रेमेडिएशन। मैंने बताया कि सेकेंडरी सेक्टर में 3 पार्ट होते हैं: मैन्युफैक्चरिंग, क्या आते हैं कंस्ट्रक्शन, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, गैस। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारा इंपॉर्टेंट है, बाकी गैस, वाटर सप्लाई, रेमेडीज। इलेक्ट्रिसिटी का इस सेक्टर में 82% कंट्रीब्यूशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी वही बात आती है, यहाँ भी हम आपके बैलेंस शीट चाहिए होते हैं। आपके जितने भी स्टेट यूटिलिटीज हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इनके हमको बैलेंस शीट चाहिए होती है। इसके बैलेंस शीट भी समय पर मिलना जरूरी है, नहीं मिलेगा तो डेटा कम हो जाएगा। अब मैंने बताया कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस सीएफसी, ये तीनों हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज आपका एक मार्जिन से अधिक नहीं बढ़ेगा, सीएफसी भी आपका फिक्स है, तो ओनली चीज जो बढ़ेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आपका फिक्स है, इंटरेस्ट आपका फिक्स है, तो क्या चीज है? प्रॉफिट इज द ओनली थिंग जो जीबी आपका बढ़ाएगा। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी जीबी बढ़ेगी। तो ये कोशिश करना है प्रॉफिट बढ़े और समय से डेटा बढ़े। सभी काम कर रहे हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरप्राइजेज हैं, उन लोग साथ समस्या ये है कि जो लिगेसी डेटा है, जो लिगेसी लायबिलिटीज है, उनको कैसे पूरा करें, इसीलिए नेगेटिव आ जाता है। पावर कॉर्पोरेशन बहुत बढ़िया सब काम करता है, लेकिन प्रॉफिट के मामले में लायबिलिटी को हटाने के बाद बहुत कम प्रॉफिट लग जाता है, तो हमारा बहुत ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो हमें ये भी कोशिश करना है कि हम इसको कैसे करें। जो प्राइवेट पावर कॉर्पोरेशन के लोग हैं या एंटिटीज हैं, उनका एमसीए से डेटा मिलता है, वो मिल जाता है हमें, उसको हम रख लेते हैं। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जीज में जो लोग हैं, कोई ना कोई कॉर्पोरेट उसमें काम कर रहा है, वो डेटा हमको वहां से मिल जाता है, उसी को जोड़ के हम लोग कर लेते हैं। नेशनल जीवीएस जो होता है, नेशनल लेवल पे, जैसे एनटीपीसी है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है, इनका भी वही तरीका है जैसा कंस्ट्रक्शन बताया कि एमसीए से उनको नेशनल लेवल पर जीवीए मिल जाता है, कोई इंडिकेटर लगाते हैं, उस इंडिकेटर से वो स्टेट को एलोकेट कर देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट में है उसी में हम कर सकते हैं, हम डेटा लगा सकते हैं, सब चीज भेज सकते हैं।
इसमें भी देखिए स्टेटमेंट नीचे लाइन में देखिए लिखा है कि डेटा हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये समय पर मिल जाए तो हम कर लें। गैस वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विस में गैस में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बायोगैस। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वो एनवीए हमको वहां से मिल जाता है, वो कुछ जैसा बताया इंडिकेटर लगा के हमें दे देता है। और बायोगैस, स्टेट में कितना बायोगैस लगा, हालांकि अब मेरे ख्याल से बंद हो गया है, ये भी पुरानी फिगर है, लेकिन एक बायोगैस से कितनी एनर्जी और जीवीए कैलकुलेट होता है, ये स्टडी है। वो बताती है कि इतने मीटर क्यूब की अगर बायोगैस है तो इतनी जीवीए ऐड होगा। तो हम नंबर ऑफ बायोगैस की फिगर फील्ड से लेते हैं और पर बायोगैस पर मीटर क्यूब बायोगैस कितना बनता है उसके जीवीए से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये तो बहुत स्मॉल पार्ट है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको मालूम है मथुरा औरैया में हमारे गेल का ऑफिस है। मेजर जो चंक हमको मिलता है वो वहां पे कितने एम्प्लॉयज लगे हैं, कितने एसेट है, उसके हिसाब से गेल का हमको मिलता है कि वहां से कितना प्रॉफिट हुआ। बट नेचुरल है, गेल का प्रॉफिट मिलेगा तो उतना हमको ये अधिक प्रॉफिट मिलता है। वाटर सप्लाई दो जगह से होती है, रूरल अर्बन बॉडी, अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज का भी हम बजट एनालिसिस करते हैं, रूरल लोकल बॉडीज का भी हम बजट एनालिसिस करते हैं। उन्होंने वाटर सैनिटेशन कितना खर्च किया, उन्होंने एम्प्लॉयज को पेमेंट में कितना खर्च किया, पूरा बजट एनालिसिस होता है। ये काम हमारे डीएसटीओ ऑफिस, हमारे जो फील्ड के ऑफिस है, इसको हम लोग खुद करते हैं। हमारे यहाँ रूटीन बना हुआ है, उस रूटीन से डेटा हमारा आदमी जाता है, फील्ड से लेता है, करता है। हमें दिक्कत रूरल लोकल बॉडीज में नहीं, 50,000 रूरल लोकल बॉडीज हैं। हम सैंपल बेस पे 1/3 ऑफ लोकल बॉडीज का डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको प्रूव। समस्या हमें आती है वहां से जहां पे डेटा मेंटेन करने की प्रॉपर व्यवस्था है, मतलब नगर निगम से। छोटे लोकल बॉडी से मेरा आदमी जाता है, वहां 2 का स्टाफ है, बैठ के बनवा देता है या उनको देता है। लेकिन अर्बन लोकल बॉडी जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, बड़े लोकल बॉडीज हैं, तो इनके बैलेंस अकाउंट ही नहीं फाइनल होती, इनके अकाउंट ही नहीं फाइनल होते। आदमी जाता रहता है, आता रहता है, तो समय से डेटा नहीं मिलता। तो हम भी क्या करते हैं, पिछले डेटा में कुछ ग्रो करके भेज देते हैं। तो इम्पोर्टेंट यह है कि लोकल बॉडीज का डेटा हमें कलेक्ट सही मिले। लगभग अब यह है कि कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे, लेकिन बट द डेटा हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द लाइन डिपार्टमेंट। अगर आप हमें डेटा समय पे दे दें, एक्यूरेट दे दें तो और बढ़िया है। थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ है तो उसमें हमारे लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि उसको ठीक कर लेते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं या उससे मार्जिन ऑफ एरर निकाल लेते हैं। लेकिन चूंकि डेटा के कस्टोडियन डिपार्टमेंट्स हैं, तो जब तक आप हमें उसको देंगे नहीं तब तक हम उस डेटा को यूज नहीं कर पाएंगे। यूज नहीं कर पाएंगे तो हम पुरानी डेटा भेजेंगे, पुराना डेटा भेजेंगे तो जीएसडीपी सप्रेस रहेगी। तो मेन मेरा आप लोग से यही अनुरोध है, एक्टिविटीज ये सब तो कैलकुलेशन के तरीके सब डॉक्यूमेंटेड हैं, और वो ऐसा भी नहीं है कि ये जो कैलकुलेशन का तरीका है डीएस यूपी या स्टेट गवर्नमेंट ने तैयार किया हुआ है। इनफैक्ट ये मेथोडोलॉजी इंटरनेशनल अप्रूव मेथोडोलॉजी है। यूनाइटेड नेशंस ने एसएनए 2008 बनाया हुआ था, उसमें मेथोडोलॉजी दी थी कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगा। और ये खाली ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड इस मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है। तो हम इसमें बहुत चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्क्रूटनी को अवेलेबल नहीं हो पाएगा अगर हम कुछ चेंज कर सकते हैं। तो जो चीज हम चेंज कर सकते हैं वो डेटा की अवेलेबिलिटी और डेटा की एक्यूरेसी। एक सबके साथ मैं अपना खत्म करता हूं। और
कुछ मेरा बस आप लोग से यही अनुरोध है कि समय पर डेटा दें OTT। थैंक यू।